ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 61 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਲਾਹੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ, ਕਰਤੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਭਾਵ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, 2 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰੀ ਭਾਵ ਤਰਸ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
जिस ते ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਡਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰ ਕਹਿ ਦਰ ਆਇਆ, ਹਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਢਾਡੀ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਦੇਖ ਲੈ ਕੌਣ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰ ਹਰ ਕਹਿ ਦੁਆਰ। ਬਹੁਤਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਹੁਤਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਮਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਧੇਰ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਉਸਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਤੇ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਆਖਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨ ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾ ਗਵਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸ ਕੇ, ਨਿਮਾਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰ, ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 100% ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਜਾਸੀਆ ਬਣਨਾ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ।
गल आई लाख हेरी दी। जगत विच हर वक्त विकारां दे जिहड़े अनेक रूप ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा द्वेष, अनेकां रूप राही ये जिहड़े लाख हेरी ने, जिहड़े शिकारी ने, हर वक्त अपना जाल बिछा के बैठे हुए ने। कबीर साहब अगले श्लोक समझाते हैं कि अपनी हिम्मत नहीं, अपनी हिम्मत नहीं कि ना तो बच सकिए जब तक वो दाते दी करते दी मेहर ना होए, प्रभु दी मेहर ना होए, ओदी सहायता ना मिले। मत हर पूछे कौन है, जब तक ओदी तरस वाली नजर साडे ते ना पए, तब तक इन पंजों विकारां तो, इन पांच लड़कियां तो, इन लाख हेरिया तो नहीं बचिया जा सकता। पर गल वही है, अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, तरला पाना है, अरदासिये बनना है, चोली फैलानी, दावा नहीं करना, क्लेम नहीं करना, क्योंकि ये निरोल प्रभु दी अपनी दात है। इको एक रास्ता है आपा गवाना, 100% सरेंडर करना है। क्यों किंतु नहीं, कोई क्यों किंतु नहीं। जेड़ी गल पिछले श्लोक में की मत हर पूछे कौन है, वही ख्याल हुन फिर दोहराया अगले श्लोक विच कबीर साहब ने। इसी कॉन्टेक्स्ट विच श्लोक नंबर 62 विच दर्शन करते हाँ, बख्शिश करते ने आपा गवारन वाली अवस्था नाल वाकफियत कराउंदे ने। आओ दर्शन करिए श्लोक नंबर 62। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किछ हर किया, पयो कबीर कबीर। क्या जाने हो किछ हर किया, पयो कबीर कबीर। इत्थी गल कबीर साहब बड़ी स्पष्ट रूप विच सानू समझाते हैं। जेड़ी गल पिछे है मत हर पूछे कौन, हुन मेहर दा पात्र बनया किस तरह जाएगा, जद अंदरों अपनी जड़ी मैं है वो खत्म होएगी, वो मिटेगी। कबीर साहब इत्थे निमरता दी मिसाल देंदे आ समझाउंदे ने सानू, कहंदे ने ना हम किया, कहंदे ने मैं ये कम कर ही नहीं सकता, मेरी हिम्मत ही नहीं, मेरी योग्यता ही नहीं, मेरी समर्था नहीं। केड़ा कम, केड़ा कम, ये दुनियावी कम नहीं, सब तो वड्डा कम जेड़ी युद्ध, जेड़ी लड़ाई लाख हेरिया नाल, माया दे अलग अलग कामदक वैरियां नाल लड़नी है, वो कबीर साहब कहंदे ने मेरी हिम्मत विच नहीं कि मैं एक कामादिक लाख हेरिया दी मार तो बच सका, मैं उन्हां नाल लड़ सका, मैं उन्हां ते जित हासिल कर सका, मैं उन्हां तो बचाव कर सका। मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जब तक ये कामादिक वैरी, ये शिकारी अपना जाल बिछा के बैठे रहेंगे, तब तक प्रभु चरणा विच मैं नहीं जुड़ सकदा, उस नाल प्रीत नहीं बन सकदी। मेरे विचकार जिहड़ी ये दीवार है विकारा दी, होमे दी, अहंकार दी, तृष्णा दी, लोभ दी, काम दी, ये मैनू ओदे नाल जुड़न नहीं देंदी। और ना मेरे वस विच है, ना मेरे अंदर कोई योग्यता है, ना मेरे अंदर समर्थ है, मैं इस चौका ही नहीं है कि इन्हां नू रोक सका, इन्हां तो बच सका। ना करेंगे कहंदे ने, ना ही मैं, ना ही मेरे अंदर उन्नी ताकत है कि मैं अगों भी इस तो बच सका, अपने आप को संभाल सका, मैं इन विकारा दा टाकरा कर सका। मेरे अंदर इन्नी ताकत नहीं, लेकिन ना कर सके शरीर, मेरा शरीर भी इन्ना समर्थ नहीं। जिस शरीर दे उत्ते असी मान करते, बड़ा बांका, बड़ा वड्डा ताकतवर समझते, कहते ने शरीर भी कुछ नहीं, मेरे शरीर विच भी इन्ना
जोर नहीं, इन्नी ताकत नहीं, इन्नी हिम्मत नहीं, क्योंकि जेडे मेरे ज्ञान इंद्र ने वो हर वक्त इन विकारां वाली प्रेरे रहंदे ने, हर वक्त इन विकारां नूं ही विकारां ते ही दे अधीन अपने जीवन नूं चलांदे। कबीर साहब इत्थे सानू अपने आप नूं संबोधन करके समझाते ने कि मनुख तेरे वस विच कुछ नहीं, आपे चाह के भी इन विकारां तो तू जित हासिल नहीं कर सकता, बच नहीं सकता। ये विकार तेरे ते हमेशा हावी रहणगे, तेरे ते भारू रहणगे। पर नाल ही फिर जेड़ी जुगत समझाई कहंदे ने क्या जानियो किछ हर किया, भयो कबीर कबीर क्या जानियो। कहने असल गल ते ये है कि जे मैं इस तो बच सकिया, इस ते जित हासिल कर सकिया, इन्हां नाल लड़ सकिया, इन्हां दा टाकरा कर सकिया, ते मैं ते कुछ असल गल ते है क्या जानियो की पता, क्या जानियो किछ की जा की पता किस तरह हो गया जो किछ कीता, जो किछ होया। ये कामादिक वैरियां तो जित के जो थोड़ी बहुती भगती मैं कर सकिया, जो उस परमात्मा दे लड़ लग सकिया, जो उस प्रभु दे दर ते प्रवानगी मिली या ओदे नाल प्रीत बन सकी, वो मैं नहीं कीता, मैनू नहीं पता किस तरह, क्या जानियो किस तरह हो गया। मैं तेन ना जाना वो हर किया, उस प्रभु ने मेरे ते कृपा की, मेरे ते नदर की, मत हर जानो होना है। ओदी नदर दा पात्र बन गया, उसदे ओनू मेरे ते तरस आ गया, ओनू मेरे ते तरस आ गया ते उन्ने मैनू इस जोगा बना दिता। मैनू उस थोड़ी बहुती जड़ी मैं भगती, जड़ी मेरे अंदर गुण पैदा होए, जेड़े मेरे अंदर सिमरन पैदा होया, जेड़ा उस नाल प्रीत पैदा हुई, वो केवल ओदे वजह नाल ही हुई। वो जानदा है मैं ते एवें ही मशहूर हो गया, एवें ही मेरी वड्डियाइयां हो गई, भयो कबीर कबीर। निमरता दी वो मिसाल देंदे ने कबीर साहब, वो अवस्था दर्शाई है भगत दी, वो अवस्था दिखाई दर्शाई है रब्बी गुना दे, जेड़े प्यारे ने रब्बी गुना दे घर। समझाया कि जेड़ा उसनु समझ लैंदा है, उस प्रभु दी करनी नु समझ लैंदा है, जिथे समझ लैंदा है कि जो हो रहा है ओदे वस विच है, जो करन वाला है वो है, जो संभाल रहा है वो कर रहे हैं, अपने वस विच कुछ नहीं। जिन्हों ये समझ आंदी है मेरा किया कछु ना होए, कर है राम होए है सोए। जिन्हों ये समझ आंदी असली भगत होई, असली भगत होई है, ते वो दुनिया ते रहंदियां होया भी ते फिर प्रभु दे दर ते भी प्रवानगी पांदा है। भगत की डेफिनेशन भगत फरीद जी ने सानू समझाई कई बार बानी विच, बार बार गुरु पातशाह की बानी विच बार बार सानू समझाया गया। जिस भगत दी गल, जिस भक्ति दी गल, जिस अंदर रब्बी गुना दी गल कबीर साहब कर रहे ने, सानू समझा रहे ने, सानू दृढ़ करा रहे ने, सानू सुचेत कर रहे ने कि तू करने वाला कोई नहीं। फरीद साहब ने भगत की जो डेफिनेशन दी, मत होती होए याना, तान होदे होए निताना, अनहोदे आप वंडाए, वो ऐसा भगत सदाए। वो भगत है जेड़ा अंदर उस प्रभु दी बख्शिश सदका, जिदी मत उच्ची सुची होए, जिदे अंदर ज्ञान दा चानन होए, पर फिर भी अपने आप नू याना अखवांदा होए। ਅਸੀਂ ਤੇ जरा जी गल होंदी है पहले अपने आप ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ अपने कॉलर ਉੱਚੇ करके बैठ जाने, ਸਿਆਣਾ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਾਤਾ ਨਿਤਾਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ।
ਪਦਾਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਜੇ ਦੇ ਤੱਕ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੰਡ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जाने किछ हर किया पयो कबीर कबीर। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਏ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਧਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ इन विकारा ते जित हासिल करना पॉसिबल नहीं। इन विकारा तो जितना पॉसिबल नहीं। ये युद्ध कला बार बार बानी सानू समझाई जाती कि उहदे दर ते निमाने और निताने तर बनना है। उहदा दर कोई ये नहीं कि गुरु कर जाके उहदा दर, वो अंदर बैठा है, उहदी जोत अंदर है, क्या आएगी गल। उहदा सिमरन ही उहदे गुण ने, उहदी याद ही उहदा प्यार है, उहदा भरोसा दृढ़ हो जाए, यही भक्ति है। हुण अगले श्लोक विच, श्लोक नंबर 63 विच इसी भरोसे विच रंगे हुए प्रभु प्यारे की गल करदियां होए उस प्रभु प्यारे की मानसिक अवस्था नाल सानू जानू करांदियां होया कबीर साहब बख्शिश करते ने, समझाते ने कि प्रभु का प्यारा रब्बी प्रेम विच इस तरह रंगिया हुंदा है कि दिने किरतकार करदियां उसकी सूरत प्रभु नाल ऐसी जुड़ी होंदी है, इस तरह प्रभु की याद विच रंगिया हुंदा है कि राती सोंदियां होया भी उसके मन बच कर्मा विच प्रभु ही चेते हुंदा है, उहदे हिरदे घर विच प्रभु की याद ही चेते। कबीर साहब बख्शिश करते हैं, आओ दर्शन करिए श्लोक नंबर 63। कबीर सुपने हूं पढ़ बरड़ाए कै, जय मुख निकसै राम, ताकै पग की पा नहीं, मेरे तन को चाम। कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै, जय मुख निकसै राम, ताकै पग की पा नहीं, मेरे तन को चाम। उस अवस्था की गल करते ने कबीर साहब, कहते ने कि सुपने, सुपने हुंदे सुपने विच सोंदे होए जिहड़े सानू सुपने आंदे ने, बरड़ाए के जिहड़े सोंदे होए असीं बड़बड़ांदे आ, कई बारी असीं जो चीज साडे दिमाग विच चल रही हुंदी है असीं ओही बोलण लग पैंदे और सुपनिਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ बड़बड़ाया ਜਾਂਦਾ है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ दिन ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ दिन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जिस तरह एक बच्चा सारा दिन अपने पढ़ाई का अभ्यास करता है, किसी सब्जेक्ट के उत्ते अपना ध्यान लगांदा है, और राती सोंदियां होया भी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ सब्जेक्ट के रिलेटेड ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ।
इस तरह ही दिन विच जिस तरह दे असीं कर्म करवांदे हां, जिस तरह दे असीं कार करदे हां, बहुतां तौर ते जदों राती कई वारी साडे मूंह चों कोई गल्लां निकलदियां ने, वो मूंह चों ओही निकलदियां ने जिहड़ी दिन विच असीं गलबात कीती हुंदी है, दिन विच जिस तरह दी साडी कार हुंदी है, जिस तरह दे साडे बचन हुंदे ने, जिस तरह दा साडा मन अंदरों तैयार हुंदा है। ते कबीर साहब इत्थे ओही गल सानूं समझांदे ने, कहंदे ने मैं बलिहार जाना, मैं सदके जाना उस रब दे प्यारे नूं, मैं बलिहार जाना उस भगत नूं जो जिहदे मूंह चों राती सुत्तियां होइयां वी सोंदियां होइयां वी ओहदे मूंह चों उस रब दा प्यार निकल रहा है, रब दी बंदगी, वो रब दा नाम निकल रहा है, उस रमे हुए राम दा नाम ओहदे मुंह ते है, ओहदे मुख ते है। सुपने सुपने हो बरड़ाए के जय मुख निकसै नाम। कहंदे मैं बलिहार जाना ताकै पग की पा नहीं हुंदा है जुत्ती। कहंदे इन्ना उच्ची अवस्था दसदे ने उस भगत दी, उस रब दे प्यारे दी, उस रब दे प्यार विच रंगे हुए दी। कहंदे ने मेरे जिहड़ी तन को चाम, मेरी जिहड़ी चमड़ी है, मेरी जिहड़ी तन दी चमड़ी है, मैं चाहना मेरे तन दी चमड़ी तो ओहदे पैर दी जुत्ती बन जाए। मेरे लिए वो इन्ना धनता दे योग है, मेरे लिए वो इन्ना उच्ची अवस्था दा मालक है। मैं बलिहार जाना, सदके जाना उस भगत तो जो सारा दिन किरतकार करदियां होया भी उस प्रभु दे नाल जिहदी लिव जुड़ी हुई है, क्योंकि राती मूंह चों गल ओही निकलेगी, उस प्रभु दा ख्याल उसी नूं होएगा, उसदी भै भावनी विच ओही बड़बड़ाएगा जेड़ा सारा दिन उसनूं अपने मन विच वसा के बैठा होएगा, ओहदे गुनाह नूं अपने मन विच वसा के बैठा होएगा, ओहदी सिੱਖਿਆ नूं अपने मन विच वसा के बैठा होएगा, जिहदी असली प्रीत ओहदे नाल जुड़ी होई। जिथे प्रीत होएगी उत्थे ही राती ओहदे ख्याल होणगे, उस प्रभु दे, उस करते दे ख्याल होणगे। उस करते दा ख्याल मन विच होएगा, तदी मन विच जदों मूंह तो सुपने विच भी जेड़ा बड़बड़ाहट होएगी या मुंह चों बोलिया जाएगा, वो उस प्रभु दा नाम ही होएगा। नहीं तो दुनियावी खिच इन्नी चमकदार है कि जनरली असीं अपने संसार नूं देख लईए, असीं सारा दिन जो भी करदे हां, जो कार कमाने, जिस माया दे पिछे दौड़ भज करने आ, राती सोंदियां समय सुत्तियां होइयां भी साडे दिमाग विच ओही चल रहा हुंदा, साडी सुरत उत्थे ही जुड़ी हुंदी। ते कबीर साहब सानूं चेतावनी दे रहे नाल दृढ़ करा रहे ने कि जेड़ी असीं माया दे पिछे दौड़ के अपने जीवन नूं बिरथा कर रहे हां, तद तक ओहदे नाल प्रीत ना समझना जब तक सुत्तियां होइयां भी ओहदा ख्याल, ओहदा प्यार अंदर वसिया नहीं होएगा। भाव सुत्तियां होइयां भी ओहदे घर दा अरदासिया नहीं बनिया होएगा। भगत साहब सानूं भाव मनुख नूं वो उपदेश बख्श रहे ने, वो चेतन करा रहे ने, कह रहे ने कि दिन वेले किरतकार करदियां होइयां सुरत प्रभु चरणां नाल जोड़ो, ताकि राती भी रात सुत्तियां होइयां भी अपने आप वो सुरत उस करते दे चरणां नाल जुड़ी रहे। इस तरह उठदियां बैठदियां सोंदियां जागदियां हर वेले ये लिव ओहदे नाल जुड़ी रहेगी। जेड़ा बानी दी सानू प्रेरणा है, उठत बैठत सोवत जागत ये मन चितारे, वो तदी होएगा जब दिन वेले प्रभु प्यारिया दी संगत करके, प्रभु प्यारिया दी संगत करके, उस गुरु नूं समर्पण करके उसकी सिक्ख्या दे हेठ अपने जीवन नूं तैयार किया जाएगा। जब तक वो सिक्ख्या, जब तक वो प्यार अंदर नहीं वसेगा, तब तक 8 पैर गुण गाए गोबिंद वाली गल अंदर नहीं है। कबीर साहब सानू इत्थे चेते करा रहे ने, सानू फिर तो चेतन करा रहे ने कि तू चाहना है कि 8 पैर तेरी लिव उस प्रभु नाल जुड़े, तां इक्को एक रास्ता है, किरतकार करदियां होया, संसारक जीवन विच विचरदियां होया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नूं पूरी करदियां होया, हर वक्त ओहदे शुकराने विच रह, हर वक्त ओहदे भरोसे विच रह,
हर वक्त ਉਹਦੇ नाम ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ, अपनी लिव ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ी रख। जरूरी नहीं केवल बानी पढ़ना, मुबारक है बानी पढ़, पर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ दिन बानी ही पढ़नी। बानी पढ़न ਦਾ मतलब है बानी ਦਾ सिद्धांत, बानी ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ मन ਵਿੱਚ ਵਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, बानी ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ जुगत हर वक्त अंदर चानन बनाई रखे। वो है असली भक्ति, वो है असली जीवन जुगती, जो बार बार गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साडे बख्शिश करते हैं। उच्चा सुच्चा जीवन, निर्मल कर्म ये ताई हो सकते ने जे हर वक्त ये मन उस प्रभु ਨੂੰ ਆਰਾਧੇ, हर वक्त उस प्रभु ਦੇ गुनाह ਨੂੰ ਧਾਰਨ करे, हर वक्त ਉਹਦੀ याद ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ, हर वक्त ਇਹ ਸਮਝੇ कि जो भी मेरे जीवन ਵਿੱਚ हो रहा है उस प्रभु ਦਾ, उस प्रभु ਦੀ करनी है, सब ਉਹਦੀ करनी ਵਿੱਚ है, कुछ भी बाहर नहीं। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਲੈਣਾ ਤਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। जब तक नकमस्तक नहीं होवांगे, जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करांगे, तब तक अंदर ये सुरत ये बिरती पैदा नहीं हो सकती, तब तक ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ उस प्रभु नाल नहीं जुड़ सकती, ਉਹਦੇ गुण अंदर धारण नहीं हो सकते। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀ ਜਾਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ उसका शुकराना, हर काम ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ शुकराना, हर काम ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ, हर काम ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਅੱਗੇ 64 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ उस प्रभु ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਇਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨਾ, ਮੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ, ਸੰਸਾਰਕ ਰੁਤਬੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗੀ ਜਦ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਉਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ 100% ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਖਵਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਰੌਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਦਾਂ, ਜਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਲਈ ਸੀ? ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰੌਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਸੁਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੇਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਮਿੱਥਿਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ
इस जन्म ਨੂੰ ਬਿਰਥਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं। तो कबीर साहब अगले श्लोक ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ आओ दर्शन करिए श्लोक नंबर 64 ਦੇ। कबीर माटी के हम पुतरे मानस राख्यो नाव, 4 दिवस के पहुने बड बड रूंदे ठाव। कबीर माटी के हम पुतरे मानस राख्यो नाव, कहते ने असि मट्टी दे पुतरे हां जिहदा नाम मनुख रख दिता गया, जिन्हों मनुख कह के बुलाया जाता है, पर ये मनुख ये नहीं जानता 4 दिवस के पौने, ये जेड़ा जीवन मिले इहदी एक म्याद है। हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मौत ना जाने, इहदी एक म्याद है, एक समा दिता है, और समा परौने वांग विचरण लई है, ना कि मालक बन के बैठन लई। जिवें परौना किसी दे घर जांदा है ते ओहदे जिहड़ी घर दी वस्तुआं दी वरतों करदा है, पर नाल चुक्की नहीं फिरदा, जफ्फे नहीं मारदा। ते कबीर साहब कहंदे ने जीवन दी जिहड़ा तैनूं ये जीवन मिलिया ना 4 दिनां दा, एक म्याद मिली है, स्वासा दी पूंजी मिली है। वो मिली किस ਲਈ है? वो एक परौने वांग मिली, अपने आप ਨੂੰ परौਣਾ समझ कि जेड़ा ये संसार ये जेड़ा तेनू उस परमात्मा ने तेरे ते मेहर करके तेनू तेरे ते बख्शिश करके तेनू मनुखा जन्म दिता है, इनू तेनू समझ है मिट्टी का एक पुतला है, कदों ये खत्म हो जाए पता भी नहीं चलना, फिर मिट्टी विच मिल जाए पता भी नहीं चलना। उस परमात्मा की बख्शिश है तेरे अंदर, और जोत उन्हें अपनी रख के इसनू समर्था दिती है किस चीज की कि परौने वांग जिंदगी जी सके। जेड़ी बख्शिशा उस दाते ने तेरे ते कीतियां, जिस तेरी बख्शिशा उस प्रभु ने तेनों दित्तियां, जेड़े दुनियावी रुतबे दुनियावी पदार्थ तेनू बख्शे, उसनू जफ्फे नहीं मारने, उसनू परौने की तरह उसकी सुवरतों करनी है। जे जफ्फे मारेगा तो उसकी कुवरतों करेगा, और वही असीं बतान तौर पर कर रहे हैं, असीं जीवन विच ओही ते कर रहे हैं। असीं अपना मन के ना हक जमा के बैठ जाने, असीं दिन रात साडी भुख कटदी नहीं, असीं दिन रात अपनी जमीनां अपनी मलकीतां वधाण ते लगे होए, साडा मन विच हर वक्त होर होर चलता है, क्योंकि तृष्णा विरले की ही बूझी है। हर वक्त साडे अंदर तृष्णा की लहर चल रही है, सानू वड्डे वड वड रूंदू लाओ, असीं वधीक तो वधीक होर ते होर जगह मलन दे पिछे दौड़ रहे हैं, सब पदार्थ पाउण दे चक्कर विच लगे हैं, मलकीता मलन दे चक्कर विच लगे हैं। असीं अपना मलकाना हक बन उसते मलकाना हक समझ के बैठ गए हैं, जबकि है परौने। थोड़े समय ਲਈ उसकी वरतों ਲਈ परमात्मा ने उस करतार ने साडे ते बख्शिश की, पर असीं अपना समझ के बैठ गए, असीं ਉਹਦੀ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ बैठ गए, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ बैठ गए। ਤੇ ਜਦੋਂ परमात्मा ਨੂੰ उस करतार ਨੂੰ ही विसार ਦਿੱਤਾ, ਤੇ फिर ਇੱਥੇ कबीर साहब ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ सही मानिया विच सानू आईना दिखाउंदे ने, सानू एक्चुअल अपनी वैल्यू समझाते हैं, साडी औकात नाल जानू कराउंदे ने। कहंदे ने मनुख तो एक मिट्टी का पुतला है, इसनू नाश होंदिया देर नहीं लगनी, 4 दिन का परौना है तू, जैसे रैन परौने उठ चल सै प्रभात, क्या तू रता गिरस्यों सब फुल्ला की बागात। टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी है, मिथ्या है, कूड़ दे नाल अपनी दोस्ती पाके बैठे हैं, ते फिर बाद विच रिजल्ट की होना है? महल माड़ियां दे पिछे मल्ला मलन दे पिछे हर वक्त मन लगा रहिंदा है, हर वक्त दौड़ भज लगी रहिंदी है। तो कबीर साहब इत्थे समझांदे ने जद इस संसार विच तेरा समा ही लिमिटेड है, म्याद ही लिमिटेड है, तू ज्यादा टाइम रहना ही नहीं, तो फिर इन जंजालां विच फसन दी तैनूं की लोड़ है?
ਤੇ ਮੱਲਾ ਮੱਲਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਤਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। क्यों? क्योंकि यह जीवन मिलिया ही थोड़े समय लिए और मिलिया कई इसलिए गोविंद मिलन की एक दिन, और मिलिया कि उसकी कृपा नाले पई प्राप्त मानुख ते होनी गोविंद मिलन की तेरी प्री। कभी पातशाह भी कहते ने अवर काज तेरे किते ना काम, मिले साध संगत पज केवल में। पर ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि संसारक जीवन नहीं जीना, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि संसारक पदार्थ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸੁਖੇਲਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ, जब तक अंदरों मोह तो उपराम नहीं होवांगे, उस प्रभु दे शरण विच नहीं आवांगे, जब तक अंदरों उस प्रभु दी नदर, उस प्रभु दी कृपा सदके विकारों तो दूर नहीं होवांगे, तब तक ये जिन्ने भी विकार ने, जिन्ने भी तृष्णावां ने, जिन्नियां भी लोभ दी लहरां ने सानू जकड़ी रखणगियां और अस प्रभु नाल प्यार नहीं बना सकते। इत्थे कबीर साहब सानू समझांदे ने कि भाई जीवन दे असलियत ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਪਰਾਮ ਹੋਣਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ, जो भी हो रहा ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਲਗਾ ਦੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ, ਸਭ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ, रविदास जी का शब्द आंदा ना, माटी को पोतरा कैसे नचत है, दिख है, सुने है, बोले, दौड़ो फिरत है, हर वक्त माया दे पीछे दौड़ रहे। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोन लगत है। तो वही हालात साडे ने, क्योंकि ਅਸੀਂ हर चीज ਨੂੰ अपना ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। जब तक गुरु ਦੀ शरण ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡ ਰੁੰਦੋ ਨਾਉ ਠਾਉ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਸਾਨੂੰ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ ਪਰ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਧੁਨੀਆਂ ਤਪਾਨੀਆਂ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਜਾਏ।
जिज्ञासा केवल नाम दी होए, जिज्ञासा केवल रब्बी गुना दी होए, केवल ओदे दर्शनां दी, ओदे प्यार दी होए, अरदास हमेशा ओदे गुना दी होए, ओदे जस दी होए, ओदी बंदगी दी होए, ओदी सिफत सलाह दी होए, क्योंकि उसकी याद जिहड़ी है ना, ओदी बख्शिश है। कोई भी कर्म जिहड़ा प्रभु नाल ना मिलाए, ओदे नाल प्रीत ना कराए, ओ कर्म कांड बन के रह जाए। उदम वही है जिहड़ा प्रभु दे नाल मिलाए, प्रभु नाल प्रीत बनाए, प्रभु दे गुण धारण कराए। और किसी भी उदम दे उत्ते भी जे मान किया जाए तो भी कर्म कांड बन के रहे। उदम करदिया होया भी जे उसते मान आ जाए, जे अपना किता समझा जाए, उसते हक जमाया जाए, क्लेम किया जाए, तो वो भी प्रभु नाल प्रीत नहीं बनांदा, वो भी कर्म कांड बन के रह जाए। और दर्शन करिए श्लोक नंबर 65। कबीर मेहंदी कर कालिया, आप पिसाए पिसाए, तैशो बात न पूछिए, कबो न लाई पाए। कबीर मेहंदी कर कालिया, आप पिसाए पिसाए। कबीर साहब मेहंदी दी मिसाल दिंदे हो, सानू समझाते हैं, साडे ते बख्शिश करते हैं। कहते ने जिंदगी की सारी दौड़ भज मल्ला मलन वास्ते ही रहेगी। दूजे पासे घर बार छड़ के दुनिया तपानिया, पुठे लटकना, अजे कष्ट शरीर नू देने ते समझना रब नाल प्रीत बनन दी जुगत है, ये प्रभु नाल प्यार नहीं कराती। समझाते ने जिवें मेहंदी है, मेहंदी कर मेहंदी वांग कालिया, काल मेहनत की, जिवें मेहंदी नू किसन, जिवें मेहंदी नू किसिया जांदा है, पिसिया जांदा है, कितनी मेहनत होंदी है। आप पिसाए पिसाए, कहते ने मेहंदी पी पी के बारीक की जाती है, बार बार उन्हें पिसिया जाता, ते फिर वो पैरों विच हत्थां विच लाई जाती है। जिवें मेहंदी जिहड़े कष्ट सहंदी है, मानो क्योंकि ओदा रंग चोखा हो जाता है, तो मानो ओदी जिहड़ी काल है, ओदे जिहड़े कष्ट ने वो कबूल पै जाते हैं। पर हुण मेहंदी की मिसाल लैंदे आया कबीर साहब सानू समझाते हैं कि जिस मनुख ने अपने आप को तप आदका दे कष्ट देके बड़ी काल, बड़ी मेहनत की, बड़ी कालना की, बड़ी कालना करके जिवें मेहंदी नू पी पी के बारीक किया जाता है, उस उन्हें कालना की, अपने आप को, अपने शरीर को कष्ट दिते, अनेकों प्रकार के कष्ट दिते। क्या चौक मत बेच आओ, समय इजाजत नहीं दे रहा, ज्यादा गल नहीं कर सकते। पर इत्थे प्रभु दे दर ते ओदी प्रवानगी नहीं, प्रभु दे दर ते ओदी प्रवानगी नहीं, तैशै बात न पूछिए, कबो न लाई पाए। कहंदे ने इत्थे ओदे चरनां विच प्रवानगी नहीं, ओदी काल कमाई नू तकिया भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि काल के कालना केड़ी करनी है, कालना करनी ओदे नाम तन दी, कालना करनी ओदे गुनाह दी। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, लानत ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। कालना ओ प्रवान है जेड़ी ओदे गुनाह नू हासिल करे, जेड़े ओदे गुनाह नाल जुड़े, जेड़े ओदी प्यार नाल, ओदी प्रीत नाल जुड़े। रामकली की वार विच भी तीजे पातशाह दा एक श्लोक है, उत्थे भी गुरु पातशाह ने ऐसी श्लोक की क्लैरिटी दी है, ऐसी शब्दावली सानू समझाया है। नानक मेहंदी करके रखे आ, सोशो नदर करे, आपे पीसे आपे कसे, आपे ही लाए नहीं, ए पिरम प्याला खसम का, जय पावे ते दे, जय पावे ते दे। ए पिरम प्याला खसम का, दाता दात रखी हर हाथ अपने, जिस पावे दिते। ते कबीर साहब ने जिहड़ी गल पहले की कि जिनते ओदी, जिसते ओदी नजर हो जाए, जिसते ओदी मेहर हो जाए, जिसनू उसते जिस जिसते ओनू तरस आ जाए,
उसी दी बात पुछी जाती है। हुण कबीर साहब इत्थे भी वही गल करते कहंदे ने दुनियावी कर्म कांडा विच। हुण असीं अपने आप नूं भी देख लईए, 2-4 मिनट होर लवांगा, समाप्ति इत्थे ही करांगे। अगले 2 श्लोक अगली बार दर्शन कर लांगे। ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ ही देख लीए, जरूरी नहीं कि ਅਸੀਂ पुट्ठे लटकन की गल कर रहे हैं या इस तरह नहीं। पूरे मनुख मात्र ਨੂੰ गुरबाणी ਦਾ उपदेश एक है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਚੱਲੀਏ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। बार बार गुरु पातशाह बाणी राही भगतां दे राही सिखां दे राही साडे ते बख्शिश करदे ने, बार बार सानू समझांदे ने कि इक्को रस्ता है, हर का नाम जप निर्मल करम, इक्को रस्ता है उसते ना उसकी प्राप्ति दा, इक्को रस्ता है अपने अंदरों आप गवाए सेवा करे ता किछ पाइए मान, इक्को रस्ता है अपनी होंद नूं खत्म कर, अपने आप नूं समर्पण करके ओदे गुण धारण करके जीवन नूं निहाल कर। ਜਿਹੜਾ जीवन का असली मकसद है ਉਹਦੇ गुना दी, ना कि मेहंदी की तरह पिस्से जाइए अपने शरीर ਨੂੰ कष्ट दईए। कोई नंगी पैरी तुरदा फिर रहा है, कोई चलिए रख रहा है, कोई हर महीने दरबार साहब के दर्शनां ਲਈ जा रहा है, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਮਤ ਦੂਜੇ ਮਤ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ बड़ा क्लीयर है, वो अंदर वसदा है, वो बाहर नहीं है, वो अंदर वसदा है। ਉਹਦੇ दर्शन अंदर होने ने, और होने कदों ना जदे विकारा दा पर्दा उत्तों हटेगा, तदों गुण रब्बी गुण अंदरों प्रगट होंगे। और विकारा दे गुण कदों हटणगे जद उस परमात्मा उस करते दी मेहर होएगी। करते दी मेहर सतगुरु दे मिलाप नाल होएगी, करते दी मेहर सतगुरु नूं समर्पण करन ते होएगी। तदी कबीर साहब ने श्लोक नंबर 62 साडे ते बख्शिश की, ना हम कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानियो किछ हर किया, भयो कबीर कबीर। कहंदे ने मैं करन जोगा कि कुछ है ही नहीं सी, मेरे ते हिम्मत ही नहीं ते विकारां नाल भी दुश्मनी लेके इन्हां नाल टाकरा ले सका, मेरे टाकरा लैण दी भी हिम्मत नहीं, जितन दी ते गल ही बड़ी दूर दी है। ये ते उस दाते दी मेहर होई ते मैनू वो युद्ध कला समझ आ गई ते मैं उसदे चरनां वल जुड़ सकिया, मैं ਉਹਦੇ प्यार दा पात्र बन सकिया। पर करन वाला वो है, जिथे भरोसा उस दाते ते वे, जिथे शुकराना उस दाते दा है, ते ना जीवन फिर मलकियत मंगेगा, फिर ना जीवन अपनी परोने वाली अवस्था नूं भुलेगा, ते ना ही जीवन फिर इन विकारां नूं भारू होण देगा, इन्हां दे जाल विच फसेगा। केवल उस गुरु दी शरण विच आके 100% सरेंडर करके समर्पित करके ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸੀਆ बनना है ਉਹਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ, जिज्ञासु बनना है, अंदर वो तड़प रखनी है, अंदर वो दर्द होना चाहिए। जे अंदर दर्द है जिज्ञासा है ते हर पूछ कौन है, शायद वो पूछ ही ले, फिर शायद वो पूछ ही ले कौन है, शायद वो साडी बात पूछ ले। कोशिश यही होनी चाहिए, अरदास यही होनी चाहिए। आओ मिलके अरदास करिए। अज इत्थे समाप्ति करने, अगले श्लोका दे दर्शन अगली बार करांगे, समा पहुंच रहे हैं। आओ दर्शन करिए, आओ अरदास करिए, मिलके अरदास करिए। क्यों बाना छड्डे गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसरना चाहिए इन्नी को अरदास, निका सीम भुल्ला चुका हूं, चलनी जान बख्श दे मेरे भुल्ला चुका दिखे मां। आओ मिलके फतेह प्यारी फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की